Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today, before moving ahead with the today's topic, we'll just have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So today we are going to talk about the banking features in Tally Prime. So before moving ahead, we'll just welcome our speakers. So Tejashri, are you here? Yes, ma'am. And Mr. Tarun, are you here? Yes, ma'am. Okay. Party welcome both of you. So I request both of you to start with your presentation. Okay, ma'am. Thank you. Can you please share the screen? Okay, thank you. Hello, everyone. Myself, Tejashri. I'm presenting a webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So today we are going to discuss about the very interesting topic, that is banking feature in Tally Prime 4.0. So let's begin with the first slide. Banking features. The banking feature in Tally Prime provides an end-to-end solution to the banking needs for running your company. That is check printing, bank reconciliation, post-dated check management, ledgers, deposit slips, payment advice, e-payment, contact details for e-payment and list of supported banks. Also बैंकिंग फीचर आपके कंपनी को एंड टू एंड सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. टैली प्राइम में आपको चेक प्रिंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, लेजर, पेमेंट एडवाइस, ऐसे सारे ऑप्शंस आपको टैली प्राइम में दिए गए हैं जिसका यूज करके आप टोटली बैंकिंग यूज कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. चेक प्रिंटिंग. Check printing in Tally Prime is an option provided in banking menu that enables you to print the pending and already printed or required checks continuously from a single screen. You can also update the check details and have a track of check to be printed of a selected or all banks. Tally Prime has provided the convenience of pre-configuring the dimension for ease in configuring and printing of checks. टैली प्राइम में आपको चेक प्रिंटिंग मेंटेन करने के लिए स्पेशल फील्ड दी गई है जिससे आप चेकबुक मेंटेन कर सकते हो. ऑलरेडी जो चेक प्रिंट किए गए हैं और जो पेंटिंग है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो. सो टैली प्राइम में आपको बैंक वाइज भी चेक मेंटेन करने के लिए ऑप्शंस दिया गया है और आप चेक को आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर और डायमेंशंस भी आप आपके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. Bank reconciliation. Bank reconciliation in Tally Prime is a process that explains the difference between the bank balance shown in organization bank statement as supplied by the bank and the corresponding amount shown in the organization owns record at a particular point of time. Auto bank reconciliation. For the auto bank reconciliation, you need to enable the option provided for the auto bank reconciliation in Bank Ledger to reconcile the transactions made with the bank. And manual bank reconciliation. The bank reconciliation option in the banking menu enables you to reconcile the bank accounts. You can access bank reconciliation to print or configure the reconciliation statement according to your requirement. बैंक रिकंसिलेशन एक प्रोसेस टैली प्राइम में आपको बहुत एफर्टलेसली यूज कर सकते हो. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और टैली में मेंटेन किए हुए वाउचर्स की अमाउंट डिफरेंस आप इजीली रिको कर सकते हो. टैली में आप ऑटो और मैनुअल बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हो. ऑटो बैंक रिकंसिलेशन में बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली इंपोर्ट करके आप बैंक रिको कर सकते हो और मैनुअल बैंक रिकंसिलेशन में आप बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट देख के टैली में रिकंसिलेशन कर सकते हो. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड बैंक्स. टैली में आपको सपोर्टेड बैंक्स की लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ ये बैंक्स भी है जैसे कि डीबीएस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक,
Standard Chartered Bank of UAE, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, ICICI Bank, टोक्यो मित्सुबिशी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और कई सारे बैंक्स आपको टैली में दिए गए हैं जिसका यूज करके आप टैली में बैंकिंग फीचर यूज कर सकते हो. So that's it from my side. I will request to Mr. Tarun to proceed ahead. Thank you. Yes, sure. Ma'am, my screen is visible. Yeah, but tally is not visible. Yes, now. Yeah, it's visible now. Yeah. Hello, good evening everyone. My name is Tarun एंड आज मैं आपको बैंकिंग जो फीचर है टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा. तो बैंकिंग का जो फीचर है वो आप टैली के अंदर किस तरीके से बैंकिंग में क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फीचर्स हैं जो दिए हुए हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो बैंकिंग के लिए जैसे कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही यहाँ पर बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है. इसमें जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो बैंकिंग फीचर में मैं सबसे स्टार्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बैंक का जो लेजर आप प्रिपेयर करेंगे तो उस लेजर में आपको क्रिएट करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी बना भी रखा है कुछ बैंक के लेजर्स, तो मैं आपको वो उसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ. देखिए जैसे एक ये बैंक है तो स्टेट बैंक के नाम से इसमें बना रखा है. अंडर ग्रुप जो रहेगा आपका वो आप बैंक अकाउंट्स के अंदर लेंगे. अगर आप बैंक अकाउंट्स नहीं भी लेते हैं, बैंक ओसीसी भी ले सकते हैं, ओडी भी ले सकते हैं. राइट. इसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन का. इसका मतलब ये होता है जैसे कि रिकन्सिलेशन आप करेंगे, जैसे अगर आपका डाटा कंटिन्यूस चलता आ रहा है 2-3 ईयर से, तो क्या होता है कि जैसे आपने डेटा अगर स्प्लिट नहीं किया है तो उस केस में हम एक ईयर बाय ईयर एक इफेक्टिव डेट भी दे सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम के बाद की ही एंट्रीज को रिकंसाइल करना है, तो ये इसके लिए है. तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम में कंपनी का नाम आप डाल देंगे या आप पर्सन का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी ऑनर या होंगे उसका नाम. इसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आएगा आपका, ये डालना है आपको. आईएफएससी कोड डालना है आपको, और स्विफ्ट कोड वो आपका चॉइस है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं. ये सारी डिटेल्स जो है आपकी अगर प्रिंटिंग पर्पज से देखा जाए तो इनवॉइस में अगर आप बॉटम साइड में लाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको जो जो डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे वही एग्जैक्ट वहाँ पे भी दिखेगी आपको. तो आपका चॉइस है, अगर स्विफ्ट कोड डालना है तो डाल भी सकते हैं. इसके बाद बैंक का नाम, तो बैंक का जो नेम है ना वो आपको जो सपोर्टेड लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ बैंक्स, तो ये स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको. जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको इसमें से सेलेक्ट करना है अपना बैंक. राइट. और ये ध्यान रखिएगा ये तभी विजिबल होगी ये लिस्ट जब आपका टैली जो है वो लाइसेंस मोड पे होगा. अगर टैली एजुकेशन मोड पे है तो ये स्क्रीन विजिबल नहीं होगी. इसके बाद ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, बीएसआर कोड जो है आपको मेंशन कर देना है. फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको दे रखी हैं. जैसे कि यहाँ पे चेकबुक मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स. तो अगर आपको चेकबुक प्रिपेयर करनी है, मेंटेन भी करनी है टैली के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं. इसको यस करके आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, जो भी आपका चेक का नंबर होगा आप वो यहाँ इस तरीके से नंबर डाल देंगे. जैसे मैंने नंबर डाला और यहाँ पर सपोज करिए मैं 50 डाल देता हूँ नंबर ऑफ चेक में, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी ले लेगा. और यहाँ पर मैं नाम डाल दूंगा, जैसे एसबीआई लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये चेक बुक बना देगा अपनी. राइट. इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग का. चेक प्रिंटिंग के अंदर क्या होगा आपका कि जो चेक है उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे. आप टैली से ही अपने चेक पे प्रिंटेड कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं, तो ये फीचर दे रखा है चेक प्रिंटिंग का. राइट. तो यहाँ पे सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स जो है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं.
तो अभी हमारा जो बैंक है वो स्टेट बैंक हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर SBI के जितने भी फॉर्मेट्स हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है पहले से, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको एक का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे फॉर्मेट 3 लेते हैं, अगर मैं इस पर एंटर करूँ Ctrl+A, यहाँ प्रीव्यू देखिए, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा आपका। ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है आपका ये। तो जब आप प्रिंटर में प्रिंट लेंगे तो चेक आपको जस्ट प्रिंटर पे रखना है और ये प्रिंट होकर के आ जाएगा उसके ऊपर। इसमें अकाउंट पे ही और डेट यहाँ पर आ जाती है, अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा वर्ड्स में। ठीक है, तो ये इस टाइप से चेक भी प्रिंट आप कर सकते हैं। थर्ड है आपका इनेबल ऑटो रिकंसिलेशन। तो ऑटो रिकंसिलेशन में क्या होता है कि जैसे आपने डेटा प्रिपेयर किया बैंक स्टेटमेंट, तो वो बैंक स्टेटमेंट आप बैंक के पोर्टल से डाउनलोड करके या तो एक्सेल फॉर्मेट में या CSV फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके और उसको डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करके आपकी उस पर्टिकुलर मंथ की एंट्रीज जो होंगी वो रिकंसाइल होंगी ऑटोमेटिकली, राइट, बैंक रिको की रिपोर्ट पे। तो इसको भी आप यस कर लेंगे अगर आप ऑटो बैंक रिकंसिलेशन करेंगे तो। अगर ऑटोमेटिक नहीं करना है, अगर मैन्युअली भी करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। फिर लास्ट ऑप्शन है ई पेमेंट्स का। तो ई पेमेंट्स जो है वो भी अवेलेबल है टैली के अंदर, तो ई पेमेंट्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अब सपोज करिए इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो बैंकिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो इसमें देखिए चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग में क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ। तो चेक प्रिंटिंग के अंदर ना जितनी भी आपकी चेक वाली एंट्रीज होंगी वो सारी एंट्रीज जो है जिसमें आपने चेक लिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब सपोज करिए मैं इसमें से कोई एक एंट्री लेता हूँ और उसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए अभी फर्स्ट टाइम अगर मैं इस एंट्री को प्रिंट करूंगा तो उस टाइम पे ये वाउचर प्रिंट करके देगा, राइट। बट अगर मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ तो एक एस्केप करते ही ये यहाँ पर चेक का दिखा देगा आपको। और चेक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, यहाँ पर फेवरिंग नेम आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अभी हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये प्रीव्यू की कुछ इस टाइप का आ रहा है, जिसमें यहाँ पर अपना अकाउंट पे ही आ गया लिखा हुआ प्रिंट होके, डेट यहाँ पर आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, इसके बाद जो पार्टी का नाम है वो भी आ जाएगा, अमाउंट इन वर्ड्स भी आ जाएगा, राइट। तो ये चेक पे ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाएगा आपका अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो। और इसके अंदर यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इससे आप डायरेक्टली अगर आपको सपोज करिए लेजर ऑल्टर करना है या चेक की डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी है एंट्री की तो वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल्ट बी से आपका लेजर ऑल्टर हो जाएगा, इस तरीके से डायरेक्टली वो लेजर पे आ जाएगा जो बैंक का लेजर होगा आपका, राइट। ऑल्ट एच अगर आप करते हैं तो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर डालने का ऑप्शन देगा वो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में अगर आप जाएंगे तो जितने भी आपके सपोर्टेड बैंक्स होंगे या आपके बैंक के जो लेजर आपने बना रखे हैं तो उसकी पूरी जितने भी बैंक्स में आपने चेक बनाया हुआ होगा चेक रेंज, तो उनकी पूरी एक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर अवेलेबल चेक्स आ जाएंगे आपके कितने हैं, अनरिकंसाइल्ड कितने हैं, रिकंसाइल्ड कितने हैं, ये स्टेटस भी आ जाता है यहाँ पे, राइट। ब्लैंक चेक कितने हैं, कैंसल चेक कितने हैं, आउट ऑफ पीरियड कितने हैं। तो ये सारी काउंटिंग्स जो है यहाँ पर बनती जाती है। ये पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम जो है आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेक स्टेटस भी है, जैसे कि यहाँ पर आप फिल्टर लगा के ऐसे चेक स्टेटस पे अगर आप एफिट करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप व्यू कर सकते हैं कि अनरिकंसाइल कितने हैं, रिकंसाइल कितने हैं, तो वो पूरे फिल्टर करके दे देगा आपको। देन यहाँ पर पोस्ट डेटेड अगर आप एंट्री करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, तो वो समरी भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। वो एंट्री पे रहेगा आपका, जब एंट्री कर रहे होंगे आप तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट डेट जो वहाँ पर डालना होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर आपका फ्यूचर डेट का है तो वो अगर आप वहाँ पर डालते हैं तो वो आपका पोस्ट डेटेड समरी में काउंट होगा, तो वो एंट्री आपको यहाँ पर विजिबल होगी, राइट। इसके बाद
डिपॉजिट स्लिप जो रहेगा आपका, डिपॉजिट स्लिप भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। पेमेंट एडवाइस भी है आपका यहाँ पर। पेमेंट एडवाइस अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जस्ट कोई भी पार्टी ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे एक मिनट रुकिए। ये ESIC पेमेंट के लिए है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पार्टी का। चलिए, इसमें एंट्रीज पास नहीं कर रखी हैं, इसमें विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो बैंक रिको की रिपोर्ट पे आते हैं। बैंक रिको की रिपोर्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और किस टाइप से उसको एक्टिविटी करनी है आपको, वो ध्यान में रखना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें जैसे मैं स्टेट बैंक में गया, स्टेट बैंक के अंदर यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज रहेंगी आपकी, वो सारी एंट्री यहाँ पर विजिबल हो रही है। अभी तो पीरियड आप देख रहे हैं ऊपर अप्रैल टू दिसंबर का सिलेक्टेड है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको जैसे हम दिसंबर का ले लेते हैं। ये दिसंबर का मैंने पीरियड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको डेट आ रहा है, पर्टिकुलर्स आ रहा है, वाउचर टाइप आएगा यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट और बैंक डेट। तो बैंक डेट का जो कॉलम है ये इसके लिए दिया हुआ है कि जितनी भी अगर आप ऑटो रिकंसाइल करते हैं तो भी, और अगर आप मैन्युअली करते हैं तो भी, तो जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें आप बैंक डेट मेंशन करेंगे। बैंक डेट वो डेट होती है जिस दिन आपकी जो एंट्री है वो आपकी अकाउंट्स पे हिट करती है, यानी कि बैंक में। राइट, जैसे आपका चेक कोई है आज जैसे 24 है, आपके पास कोई 26 का चेक आया, तो 26 की डेट पे वो जब चेक आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप उस जो एंट्री आपने पास करी होगी 24 को आज की डेट पे, तो उसका आपको बैंक डेट डालना होगा 26। राइट, तो बैंक डेट हमेशा वो डेट होता है जिस दिन हमारी एंट्री जो हमारे बैंक पे रिफ्लेक्ट करती है, तभी वह एंट्री रिको होगी। तो रिकंसिलेशन जो होता है आपका, वो मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ पर बैंक की डेट डाल के, जो जिस दिन आपका एंट्री रिफ्लेक्ट हुई है वो डे डाल करके। और अगर आप ऑटो रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं फाइल को। तो इंपोर्ट करना कैसे है मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ऑल्ट ओ करेंगे, बैंक रिको की रिपोर्ट पे आके सबसे पहला काम करना है आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ओ करके और बैंक स्टेटमेंट में जाके उसको इंपोर्ट करना है। राइट, जब फाइल आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपने बैंक पोर्टल से डाउनलोड किया है उसमें कोई, उस फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। आपको उसको ओपन करके कुछ भी चेंज नहीं करना है। फाइल आपका एक्सेल में होना चाहिए या तो CSV फॉर्मेट में। ये दो ही फॉर्मेट आप डाउनलोड करके और फिर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे पीरियड मैंने अगर दिसंबर का लिया है तो इसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैं आपको ओपनिंग BRS का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ऑल्ट एच शॉर्टकट की है जिसका। तो ओपनिंग BRS का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका डेटा अगर कंटिन्यूस चल रहा है, 2-3 साल का कंटिन्यूस डेटा है, तो क्या होता है जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो लास्ट ईयर की कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो आपकी नेक्स्ट ईयर में एज ओपनिंग BRS के अंदर आपको यहाँ पर दिखेंगी, जिसका फिगर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एज ओपनिंग। ठीक है, तो ये वो चीज़ आ रही है। अब इसमें नीचे की तरफ जो देखने को मिलता है आपको, जब आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपका जैसे यहाँ पर आ रहा है कंपनी एज पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन बैंक। अभी तो हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं किया है इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है। राइट, जब आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेंगे तो वो आपका जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी अगर रिको हो जाएंगी तो सब में बैंक डेट ऑटोमेटिक डल जाएगा। अगर एंट्रीज रिको नहीं होंगी तो जो रेस्ट एंट्रीज होंगी जो अनरिकंसाइल्ड होंगी वो उसकी फिगर्स आपको
अमाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन बैंक में मिलेगी, और एंट्रीज जो है वो नॉट रिफ्लेक्ट इन कंपनी बुक्स, ऐसा करके लिखा होगा। तो बैलेंस जो है एज पर बैंक और एज पर कंपनी बुक्स, ये दोनों चीजें आपको वहां से मैच करनी है, राइट। तो इसके अंदर बैंक से रिलेटेड मैं आपको एक फीचर और दिखा देता हूँ, जो कि F11 के अंदर दे रखा है। जैसे कि आपका पार्टी से आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड जो है आप अपना जनरेट कर सकते हैं। तो एक मैं ये जस्ट ये भी दिखा देता हूँ। इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट आपको F11 के अंदर मिलेगा अदर्स में। इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट QR कोड, इसके अंदर जैसे आप यस करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स इस तरीके से मिलेगा आपको। तो इसके अंदर नाम आपको डालना है। अगर आपने पेमेंट UPI कुछ बना रखा है, जैसे गूगल पे पेटीएम पे, या आपने अदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, तो उस पर अगर आपने बना रखा है UPI ID, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, राइट। UPI ID के अंदर आपको ID डालना है और इसमें मर्चेंट नेम में नाम डालना है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये QR कोड जनरेट कहाँ होगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे आप सेल्स का इनवॉइस लेते हैं, मैं एक सेल की एंट्री लेता हूँ। जब ये एंट्री को हम सेव करेंगे तो लास्ट में अपने पास वो ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन मैं पहले आपको ना डिसेबल करके दिखा देता हूँ। वाउचर टाइप जैसे ऑल्टर करेंगे, यहाँ पर हम गए सेल्स के वाउचर टाइप में, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। इसको मैंने यस किया, यस करने के बाद कंट्रोल किया। इसका मतलब ये है, जब हम सेल की एंट्री को सेव करेंगे तो लास्ट में पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट QR कोड। जैसे मैंने एंट्री को एक्सेप्ट किया, यहाँ पर ये पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड। मैंने इसका एक्सेप्ट किया, तो वो इस तरीके का पॉपअप खुलेगा, जहाँ पर आपका मर्चेंट प्रोफाइल का नाम आ जाएगा, पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नाम आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी। मैंने इसको एक्सेप्ट किया, तो वो QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली, ऐसा पॉपअप आ जाएगा आपके पास। फिर अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट के अंदर वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। ये बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका। तो इस QR कोड के थ्रू सामने वाली जो पार्टी है वो आपको पेमेंट कर सकती है। तो ये तो इनवॉइस के ऊपर हो गया आपका। अगर आप पार्टी का लेजर पार्टी को शेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे पार्टी का लेजर लिया हमने, ये पार्टी का लेजर है। कंट्रोल E किया, कंट्रोल E करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर के अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। तो QR कोड यहाँ पर सेलेक्टेड है, राइट। आप लिंक भी कर सकते हैं अगर लिंक देना चाहते हैं तो। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। फाइल फॉर्मेट PDF है अपना। एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने E प्रेस करते ही ये स्क्रीन खुल जाएगी आपकी। अभी यहाँ पर फिगर जो है वो पूरी फिगर आ रही है पार्टी की, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है। अब सपोज करिए मैं इसको यस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, डू यू वांट टू सेव द QR कोड इन द सेलेक्टेड वाउचर्स। यस किया तो वो 7 वाउचर्स जो है उसने पिक किया, और 7 वाउचर्स की जो फिगर है आउटस्टैंडिंग वो सारी कैलकुलेट करके उसमें आ गई है। तो QR कोड जनरेटेड। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड एस्केप कर देता हूँ, तो ये फाइल अपनी जनरेट हो गई है, और इसके अंदर QR कोड कुछ इस टाइप का आ जाएगा, जितनी भी आउटस्टैंडिंग फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो फीचर है ये भी आप बैंकिंग से रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऑटोमेटिकली इससे टाइम जो है आपका वो यूटिलाइज होगा। तो ये था आज का आपका सेशन, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Tejashni and Tarun, for your session. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. Thank you everyone for joining the session. Thank you.